بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وما كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم
ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون माशाल्लाह तबारकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सूरह ज़ुखरुफ ये भी मक्की सूरह मुबारका है। 89 आयात हैं, 7 रुकू हैं। और ये सूरह मुबारका भी उसी टाइम में नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बने हुए थे ये कुफार मक्का। और यही यही जो टाइम था उसमें सूरह मोमिन भी, सूरह फुस्सिलत और सूरह शुरा भी उसी टाइम के आसपास नाजिल हुई थी। सूरह ज़ुखरुफ और इंशाल्लाह जो अगली हम सूरह मुबारका पढ़ेंगे सूरह दुखान। अ, ये दोनों भी जिस तरह से हमने कुरान पाक की सूरतों के जोड़े देखे हैं, ये दोनों सूरतें भी एक जोड़े की हैसियत रखती हैं। और बुनियादी जो इनका मजमून, इसमें जो खास बात है इन दोनों सूरतों में वो ये है कि यहाँ पे उम्मुल किताब का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे दिया गया है, वो हम देखते हैं इंशाल्लाह। रूफे में क़ुत्तआत और कसम है उस वाज़े किताब की, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हरूफ मुक़त्तआत की बात होती है तो उसके बाद कुरान अजीम की बात होती है और उसकी अहमियत की। बेशक कि हमने उसे अरबी जबान का कुरान बनाया है ताकि तुम लोग उसे समझो, और दर हकीकत ये उम्मुल किताब में सख्त है और हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब है। अंबिया पर जितनी भी चारों किताबें नाजिल हुई हैं, और जिसको इसी उम्मुल किताब को सूरह वाक़िया में जो है किताब मकनून यानी पोशीदा और महफूज किताब के हवाले से बताया गया, और सूरह बुरूज में इसको लौह महफूज से जो है वो ताबीर किया गया है। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दरसे नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो? पहले गुजरी हुई कौमों में भी हमने बारहा नबी भेजे हैं और कभी उन्होंने उनका मजाक ना उड़ाया हो। और फिर जो लोग उनसे बदरजहा ज्यादा ताकतवर थे हमने उन्हें हलाक किया। हमने पीछे भी पढ़ा कि वो ये कहते थे हमसे कोई ताकतवर है, तो वो जो पैदा करने वाला है उन ताकतवर लोगों को, तो क्या ये लोग समझते नहीं है कि ताकत का चश्मा जो है वो किसके पास है? वो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है। तो और अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो ये खुद कहेंगे कि उन्हें उसी जबरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया है। तो वही जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम लोग अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच सको। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुदरत की निशानियां बताई हैं कि जिस तरह से अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को देखकर इंसान हिदायत हासिल करता है, बिल्कुल उसी तरह से कुदरती रास्तों और निशानात की मदद से अपनी दुनिया की जो सफरी मंजिलें हैं उनकी उनको भी पहुंचता है। और जिसने खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा और उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जला उठाया, उसी तरह एक रोज तुम भी जमीन से बरामद किए जाओगे। और वही है जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए, जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम उनकी पुष्प पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो कि पाक है वो अल्लाह जिसने हमारे लिए उन चीजों को मुसख्खर कर दिया, वरना हम उन्हें काबू में लाने की ताकत नहीं रखते थे। और एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना है। तो अगर हम गौर करें इस बात पर कि जब हम सफर की दुआ पढ़ते हैं तो उस वक्त हमें जब हम ये दुआ पढ़ते हैं कि एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना है, तो इसकी क्या हिकमत है? यकीनन इसकी यही हिकमत है कि जब इंसान सफर में होता है, चाहे वो किसी भी सवारी में हो, उस वक्त इंसान
अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाए और उसमें कोई ये नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी मौत का वक़्त जो है वो क्या मुकर्रर किया किया है। तो ये कि इसी तरह से लोग जब अमूमन सफ़र कर रहे होते हैं तो वो एक-दूसरे से दुआ के लिए भी कह रहे होते हैं कि आप सफ़र में हैं तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये वो वक़्त होता है जब इंसान बहुत गैर यकीनी कैफ़ियत में होता है, बहुत अनसर्टेनिटी की कैफ़ियत में होता है। उसको ये भी डर होता है कि खुदा ना ख़ास्ता ऐसा ना हो कि ये सफ़र जो है वो किसी और शक्ल में जो है वो बदल जाए, खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसे की सूरत में। तो ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी उन लोगों ने और उसके बंदों में से बाज़ को उसका जुज़ बना डाला। हकीकत ये है कि इंसान खुला एहसान फ़रामोश है। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में अपने में से अपने लिए बेटियाँ इंतखाब की और तुम्हें बेटों से नवाज़ा? और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, उसकी विलादत का मसला जब खुद इनमें से किसी को दिया जाता है, यानी किसी को उनकी बेटी की खुशखबरी दी जाती है, तो क्या हो जाता है उनके हाल? तो उनके मुँह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जो मुशरिकीन मक्का थे तो उनका क्या हाल था उस टाइम में अरब के लोगों का, कि बेटियाँ जो हैं बेटियों की बजाय वो बेटों को तरजीह दिया करते थे। फिर फरिश्तों को बेटियाँ अल्लाह ताला की बेटियाँ करार देना और इस तरह की बातें करना। तो क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई है जो ज़ेवरों में पाली जाती है और बहस-ओ-हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाज़ेह भी नहीं कर सकती? और उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के ख़ास बंदे हैं, औरतें करार दे लिया। तो क्या उनके जिस्म की साख्त उन्होंने खुद देखी है? उनकी गवाही लिख ली जाएगी और उन्हें उसकी जवाबदेही करनी होगी। यानी ये है कि जिसने अल्लाह ताला के ऊपर ये बहतान तराशा, यकीनन उनकी जो गवाही जो है वो लिख ली जाएगी और उन्हें उसकी जवाबदेही जो है वो करनी जाएगी। यहाँ पे एक दफ़ा हज़रत ऐसा हुआ था कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो थे, उनके बेटे उसामा को जब चोट लगी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब बहलाया था, तो बहलाते हुए फरमाया था कि उसामा अगर बेटी होता तो हम उसे ज़ेवर पहनाते, जैसे यहाँ पे ज़िक्र हुआ। तो यानी ये कि ये कहते हैं कि खुदाए रहमान चाहता कि हम उनकी इबादत ना करें, तो हम उनको कभी ना पूछते। यानी ये मामला भी जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर इफ्तरा उसका करते हैं कि और ये इस मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज़ जो है वो तीर चलाते हैं। और क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद ये अपने पास रखते हैं? और नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नज़ीर भेजा, उसके खाते-पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप-दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। हर नबी ने उनसे पूछा कि तुम इसी डगर पर चले जाओगे, यानी मैं उस रास्ते से ज़्यादा सही रास्ता तुम्हें बताऊँ जिस पर तुमने अपने बाप-दादा को पाया है? तो उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो, हम उसके इनकारी हैं। आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली और देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। और याद करो वो वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम जिनकी बंदगी करते हो, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक सिर्फ़ उससे है जिसने मुझे पैदा किया और वही मेरी रहनुमाई करेगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कलमा अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें, कि यानी क्या बात कि खालिक के सिवा जो है वो कोई माबूद होने का मुस्तहिक नहीं है, सिर्फ़ वही रब्बुल कायनात है और वही तमाम जहानों का रब है और पालने वाला है। उसके बावजूद जब ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने उनको मिटा नहीं दिया, बल्कि मैं उन्हें और उनके बाप-दादा को मताए हयात देता रहा, यहाँ तक कि उनके पास हक और खोल-खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। मगर जब वो हक उनके पास आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है और हम उसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं ये कुरान दोनों शहरों की, यानी मक्का और ताइफ के बारे में कहा जा रहा है, कि कहते हैं कि ये कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों में से किसी पर नाजिल क्यों नहीं किया गया? तो क्या तेरे रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं? दुनिया की जिंदगी में उनकी गुजर बसर के जराए तो हम उनके दरमियान तकसीम करते हैं और उनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने जो दर्जा फ़ौक़ियत दी है ताकि ये एक दूसरे से खिदमत लें, और तेरे रब की रहमत उस दौलत से ज़्यादा कीमती है जो उनके रईस समेट रहे हैं।
यानी ये है कि यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत का ज़िक्र किया, यहाँ पे रहमत से मुराद जो है वो नबूवत अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ये जो रहमत अल्लाह ताला तक़सीम करते हैं नबूवत, तो क्या जो है ये अल्लाह ताला ने उनसे पूछ के करनी है, तो यकीनन अल्लाह ताला ने उनसे पूछ कर नहीं करनी। और ये जो अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी नेमतें और जो रिज़्क अता किया है, तो ये तमाम जो है, क्योंकि वो ये कहा करते थे ना कि जी हमारे किसी सरदार के पास क्यों ऐसा नहीं आया है, ये नबूवत क्यों उनको क्यों नहीं मिली है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ये जो रहमत अल्लाह ताला तक़सीम करते हैं, ये उससे बहुत बड़ी है। अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएँगे, तो खुदाए रहमान से कुफ़्र करने वालों के घरों की छतें और उनकी सीढ़ियाँ, यानी जिनसे वो अपने बाला खानों पर चढ़ते हैं, और उनके दरवाज़े और उनके तख्त जिनके ऊपर वो तकिया लगा के बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला सब चाँदी और सोने के बना देते। ये तो महज़ हयात दुनिया की मता है, और आखिरत तेरे रब के यहाँ सिर्फ़ मुत्तकीन के लिए है। और जो शख्स रहमान के ज़िक्र से तगाफुल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका रफ़ीक बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे जो दोबारा इरशाद हमें फरमाया कि हम जो या जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब आपके रब का हुक्म आता है तो आप नमाज़ कायम करें, अब उसकी दावत पर लब्बैक कहें। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी जो ज़िक्र से मुराद हुआ, तो ज़िक्र जो है वो किसी भी शक्ल में है। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई तौफ़ीक से कुरान पाक के साथ जुड़े हैं, और जिस तरह से हम कुरान पाक की तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो कुरान की शक्ल में भी ये एक बहुत बड़ी नसीहत है, जो हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसमें कामयाब फरमाए। और जो रहमान रब का ज़िक्र है वो हम करते हैं, और अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर जब हम कुरान पाक के हकूक़ अदा करने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़िक्र की शक्ल है। फिर इस तरह से हम अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी करते हैं, हम अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के ऊपर तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, तो वो भी इबादत की शक्ल है, वो भी ज़िक्र की शक्ल है। हमारे जितने भी इबादात और जितने भी मामलात भी इवन जिनमें हम अल्लाह को याद करके हम उन मामलात को अदा करते हैं, तो यूँ समझे कि फिर भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का के ज़िक्र में मशगूल हैं, क्योंकि हमारा हर अमल जो है, हमारे उस अमल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद जो है वो शामिल है। तो ये शयातीन ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं, और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि वो हम ठीक जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया बार-बार इन जगहों पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं कि ये लोग हैं, इनके अमाल उनको शैतान मुज़य्यन करके दिखाता है। तो अल्लाह ताला से हम इस बात की माफ़ी तलब करते हैं कि खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ताला हमारे किसी काम में ना रियाकारी को शामिल होने दें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह से क्योंकि कहते हैं ना कि जो एक नेक अमल जो खुदा ना खासा किसी तकब्बुर में मुब्तला कर दे, उस बुरा है उस यानी उस गुनाह से कि जिसके बाद इंसान तौबा करे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रियाकारी और हर तरह के इस तरह के शर से बचाएँ। आखिरकार ये जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुँचेगा, तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू तो बदतरीन साथी निकला। उस वक़्त उन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम ज़ुल्म कर चुके, तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी नाफ़े नहीं है कि तुम और तुम्हारे शयातीन अज़ाब में मुश्तरिक हैं। तो अब ए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बहरों को सुनाओगे, या अंधों और सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे? जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा कि यानी उनके पास कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं, उनके पास आँखें हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं, और उनके दिल जो हैं वो पर्दों में हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं कि आप उन लोगों को सुनाएँगे जो बहरे हैं, या उन अंधों को और सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को दिखाएँगे? अब तो हमें उनको सज़ा देनी है, ख़्वाह तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आँखों से उनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है, और हमें उन पर पूरी पूरी कुदरत हासिल है। तुम बहरहाल उस किताब को मज़बूती से थामे रहो, जो वही के ज़रिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया जा रहा है कि जो वही के ज़रिए से तुम्हारे पास भेजी गई है, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत ये है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है, और अनकरीब तुम लोगों को उसकी जवाबदेही करनी होगी।
तुम से पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सब से पूछो, देखो कि क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कुछ दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके आयान सल्तनत के पास भेजा, और उसने जाकर कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। और फिर जब उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे, और हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए कि जो पहली से बढ़ चढ़कर थी, और हमने उनको अजाब में धर लिया ताकि वो अपनी रविश से बाज आ जाएं। हम जानते हैं कि जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी निशानियां अता की थी, और यहाँ पे उन निशानियों का जिक्र है जिनमें जो मिस्र में एक हुआ था, जो कहत बरपा हुआ था, वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दूर हुआ था। फिर उसके अलावा जो तूफान वहां पे आए थे, और फिर उसके अलावा जो आपको याद होगा कि जो आपने और निशानियां पढ़ी थी उनमें एक ये भी था कि जो वहां पे जो गल्लों के गोदाम तबाह हो जाते थे, जो वहां पे जो यानी जो सुरसरियां सी फैल जाती थी। और फिर उसके अलावा एक मेंढकों का सैलाब था जिसकी वजह से उनके लोग जो थे वो बहुत तंग आ गए थे, और उन्होंने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहा था। तो ये तकरीबन 7 ऐसी निशानियां थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। और बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाते हैं ना कि उनको जब कोई मुश्किल आती है कि काश शायद कि वो इसके बाद वो संभल जाएं, लेकिन वो फिर भी उसके बावजूद जो है वो दीन हक से इनकारी थे। और हर अजाब के मौके पर वो कहते कि ए साहिद, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उसे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जो ही हम उन पर से अजाब हटा देते, वो अपनी बात से फिर जाते थे। और एक रोज फिरौन ने अपनी कौम की के दरमियान पुकार कर कहा, लोगो, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही? तो क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता? यानी जिसके पास ना मालो दौलत है, ना इख्तियार और इक़्तिदार, यानी वो ये कहते हैं कि मैं बेहतर हूँ या ये शख्स जो जलील और हकीर है और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता। यानी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से फिरौन ने यहाँ पे कहा कि जी मैं तो जो है वो बेहतर हूँ, क्योंकि सारी बादशाही जो है वो मेरी है, और ये मैं किसी भी इंसान को जिंदा और मुर्दा कर सकता हूँ। तो इस वक्त हम देखें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि इस वक्त जो हमारे इक़्तिदार में जब लोग आ जाते हैं और उसके बाद अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ करे। तो वो क्या कहता था कि मैं बेहतर हूँ या ये शख्स, अम अना खैरुम में। तो हमने देखा कि ये शैतान का फिक्रा था जो सबसे पहले उसने ये कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ, जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा था। तो ये वो फिक्रा है कि जिससे हमें, और ये फिक्रा और वो फीलिंग जो है, हमें इससे हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बचने की दुआ करते रहना चाहिए कि अम अना खैरुम मिनहुम, कि मैं क्या उससे बेहतर नहीं हूँ। उसने ये कहा था कि मैं नार से हूँ और ये जो है ये मिट्टी से है। तो इंसान की अ, जो उसकी अक्ल और समझ है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वदीयत है। और अगर इंसान जो है वो अपनी ताकत के नशे में आके इस तरह सोचे, और जो अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी हैं उसको अब्यूज करे और उसको मिस यूज करे, और उसके बाद ये कहे कि मैं दूसरे लोगों से बेहतर है वो इंसान, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी तमाम चीजों के शर से महफूज फरमाए हमें। तो क्यों ना उस पर सोने के कंगन उतारे गए, या फरिश्तों का एक दस्ता उसकी अर्दली में ना आया। यानी ये है कि वो ये कहता था कि ये इनके साथ जो है कोई फरिश्तों की फौज क्यों नहीं आई, या इसके ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे। उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी इताअत की। दर हकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया, और बाद वालों के लिए पेशरो और नमूना इबरत बनाकर रख दिया। जिस तरह से कहा जाता था कि ये आप ये देखें, जो डेड सी है, जो कौम लूत के उनके अजाब के बाद जो है वो भी एक मिसाल और एक निशानी थी। और ये कहा जाता था कि वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐसी जगहों से इंसान जो है वो जल्दी गुजर जाए। लेकिन क्या है कि हमने ऐसी बहुत सारी जगहों को जो है वो तफरीह गाह बना दिया है। और जो ही कि इब्ने इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पे के ऊपर शोर मचा दिया और लगे कहने कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं, हकीकत ये है कि ये हैं झगड़ालू लोग।
और इब्ने मरियम अलैहि सलाम के सिवा कुछ ना था, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम के एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। और हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हो, और वो दरअसल क़यामत की एक निशानी है, बस तुम उसमें शक ना करो और मेरी बात मान लो, और यही सीधा रास्ता है। यानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी, यानी यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से अपने अम्र से पैदा किया, और जिस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मिट्टी के बनाए हुए नूर आपकी परिंदों आवाज को नहीं जिंदा आ रही, करते थे या आवाज मुर्दों को थोड़ी नई ना कट के जिंदगी आ देते रही है थे। आपकी। अल्लाह ताला के पैगंबर जो जो काम कर सुब्हान ताला के लिए क्या मुश्किल है क्या। अच्छा ओके। अभी ठीक है, अभी कंटिन्यू। जी अभी अच्छा। जी ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐसा ना हो कि शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सरी निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हकीकत ये है कि अल्लाह ही मेरा रब भी और तुम्हारा भी रब है, उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा था कि वो अल्लाह के बेटे हैं, नाउज बिल्ला। और उन्होंने भी यही पैगाम दिया जो बाकी तमाम रसूलों ने दिया कि हमारा रब और तुम्हारा रब एक ही है, तुम उसी की इबादत करो और यही सीधा रास्ता है। मगर उस तालीम के बावजूद उन ग्रोहों ने आपस में इख्तलाफ किया। बस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के अजाब से। और क्या ये लोग अब बस इसी चीज के मुंतजिर हैं कि अचानक इन पर कयामत आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो। वो दिन जब आएगा तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। यानी जो दीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमारे दिलों को नरम किया है एक दूसरे के लिए, कुरान की मोहब्बत में जो एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने जो हमें मोहब्बतें अता की हैं, वही ऐसी मोहब्बतें हैं जो कायम व दायम रहने वाली हैं। और कुरान पाक में इरशाद होता है ना कि मुसलमान जो है वो, मोमिन जो है वो आपस में एक दूसरे के लिए बहुत नरम है, काफिरों के लिए सख्त है। इसी तरह से यहाँ पे ये इरशाद हो रहा है कि जब क्यामत का दिन आएगा तो फिर मुत्तकीन जो हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम जो हैं जो दोस्त दुनिया में बने हुए थे, क्योंकि ये सब आरजी दोस्ती थी और ये मफाद की दोस्ती थी, तो ये क्या होगा कि ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयत पर ईमान लाए थे और मुती फरमान बन कर रहे थे कहा जाएगा कि ए मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं है और ना ही तुम्हें कोई गम लाहक होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, और तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। उनके आगे सोने के थाल और सागिर गर्दिश किए जाएंगे, और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी, और उनसे कहा जाएगा तुम अब हमेशा यहाँ रहोगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तुम उस जन्नत के वारिस अपने उस अमाल की वजह से हो जो तुम दुनिया में किया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने कदरदान है, इतने कदरदान है कि वो अपनी रहमत की बजाय अमाल का जिक्र करेंगे लोगों के, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन जन्नतों के वारिस बनाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तुम्हारे लिए यहाँ कसरत फल मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। रहे मुजरिमीन तो वो हमेशा जहन्नम के अजाब में मुब्तला रहेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। कभी उनके अजाब में कभी कमी नहीं होगी और वो उसमें मायूस पड़े होंगे। उन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वो पुकारेंगे, ए मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। तो वो जवाब देगा, यानी जो जहन्नुम के दारोगा होंगे वो जवाब देंगे कि तुम यूं ही पड़े रहोगे। हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर को हक ही नागवार था। तो क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया है? यानी ये जो सरदारानी कुरैश थे जिस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें किया करते थे, तो ये उनके हवाले से यहाँ पे इरशाद फरमाया जा रहा है, तो क्या इन लोगों ने कोई काम करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम उनकी राज की बातें और उनकी सरगोशियां सुनते नहीं हैं?
हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। हमने ये पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जिन्होंने फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने इनको लिख दिया है और ये अब उसको इसके ये जवाब देंगे। तो यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते उनके पास ही उसको लिख रहे हैं। और इनसे कहो कि अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला के महबूब बंदे। तो और वो यानी उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर अगर कोई ऐसा होता तो सबसे पहले इबादत करने वाले जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद होते। पाक है आसमानों और जमीन का फरमारवा और अर्श का मालिक उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। तो अच्छा, तो इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो। यानी जिस तरह से वो हक से इनकारी हैं इनको करने दो, यहाँ तक कि वो अपना वो दिन देख लें जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। और वही एक आसमान में भी खुदा है और जमीन में भी खुदा है, और वही हकीम और वही अलीम है। बहुत बाला और बरतर है जिसके कब्जे में जमीन और आसमानों और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीन और आसमान के दरमियान पाई जाती है। वही कयामत की घड़ी का इल्म रखता है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। और उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शिफात का इख्तियार नहीं रखते सिवाय ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे। यानी ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हजूर सब पेश होंगे तो जो शिफात की दी जाएगी का जो दी जाएगी का हक वो सिर्फ उनको दिया जाएगा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से दे पाएंगे। और हमने कुरान पाक में ये भी पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन जो है वो हमारे जिस्म के तमाम अज़ा भी जो है वो इंसान के अमाल की गवाही देंगे। तो ये है कि जो शिफात है, शिफाहत अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो सिर्फ उनको जिनको जिनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा और इजाजत दी जाएगी सिर्फ वही दे पाएंगे और सिर्फ उन्हीं को हक हासिल होगा। और अगर तुम उनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे अल्लाह ने। तो फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं। और कसम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल की कि ए रब, ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। तो अच्छा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें और अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। यानी ये है कि जो ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह का ये रवैया इख्तियार किए हुए हैं, तो इनसे बस कह दो कि ठीक है, इनसे दरगुजर करो और इनसे जो है वो एक लिहाज से किनारा हो जाओ। तो अनकरीब जो है वो तुम्हें इन्हें मालूम हो जाएगा। तो इनके लिए यानी ये कि कोई उस तरह की बद्दुआ जो है और रसूल और जो है वो तो वैसे भी नहीं दिया करते। बट ये है कि उनके लिए कोई ऐसी बात जो है वो कोई सख्त बात जो है वो ना करो और बस सलाम करके उनसे अलग हो जाओ।